السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاستی ریونیو، ہاؤسنگ، اطلاعات اور شہری تعلقات کے وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ورکنگ جرنلسٹ یونین TUWJ نے سیکریٹریٹ میں واقع ان کے دفتر میں 2025 میڈیا ڈائری کی نقاب کشائی کی۔ اس پروگرام میں ایس ہریش، محکمہ اطلاعات کے شہری تعلقات کے کمشنر دیولاپلی امر، IJU کے سابق صدر کے وراحت علی، TWJ کے ریاستی صدر کے نارائن، TWJ کے ریاستی جنرل سیکریٹری وائی نریندر ریڈی، قومی سیکریٹری IJU کے ستیہ نارائن شامل تھے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد کے علاقے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ایڈیشنل DCP اشفاق صدیقی کی جانب سے منگل ہاٹ میں پتنگ کے دکانات کی چیکنگ کی گئی۔ بعد ازاں اس دوران ایڈیشنل DCP اشفاق صدیقی نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ چائنا مانجا استعمال نہ کرے، یہ انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے اور پرندوں کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ یہ چائنا مانجا تیز ہوتا ہے، اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے سنکرانتی فیسٹیول کے آمد کے پیش نظر علاقے میں پتنگ کی دکانوں کا جائزہ لیا اور پتنگ کی دکان والوں کو مشورہ دیا اور انتباہ بھی دیا کہ اگر وہ چائنا مانجا فروخت کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دیکھیے ایڈیشنل DCP اشفاق صدیقی کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، یہ سنکرانت کا سیزن ہے، کائٹس فیسٹیول ہے۔ وہ فیسٹیول میں کائٹ اڑاتے وقت اپنا چائنیز مانجا، بلکہ ایک قسم کا مانجا ہے، وہ اس سے اب کہیں اگر کسی کو لگ گیا تو کٹ جاتا، اور لاسٹ ایئر بھی ایک آدمی مر گیا اس میں، اور یہ سال بھی انجورڈ ہوا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے CP صاحب اور DCP صاحب کے انسٹرکشنز پہ ایک بار چیک کرو منگل ہاٹ میں، بولے تو میں آج منگل ہاٹ آ کے چیک کیا۔ چیک کرنے پر ایک 6 بابنس ملے۔ اس میں ٹوٹل اپنے 5 جنوں کو ہم اریسٹ کرے، اور اس کا سورس ایک جنا ہے، اس کو بھی ہم اریسٹ کرتے ہیں، لوگ کہاں سے مانجا لائے اس کو بھی اریسٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک بات کیا ہے، میں عوام سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیسٹیول آپ منائیے، خوشی سے منائیے اور احتیاط کے ساتھ منائیے۔ بچے عمر جا کے پتنگ اڑاتے ٹائم پہ پیچھے پھسل کے گر جا رہے ٹیرس پہ سے، ایسا یہ بچوں کا خیال رکھیے، اور بچوں کو ایسا اوپر ٹیرس پہ جا کے اڑانے مت دیجیے۔ اگر اڑانے کا رہے تو بھی آپ بڑے لوگ ساتھ کرنا، اور اس کو باؤنڈری وال رہے اس جگہ اڑانے کے لیے۔ اور عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ اپنا چائنیز مانجا نہ خریدیں، اس سے لوگوں کی جان چلے جا رہی۔ اگر یہ کوئی اڑاتے سو اگر اپن دکھے تو اس کو بھی ہم کیس لگائیں گے۔ چائنیز مانجا یہ لوگ چوری کیا کر رہے ہیں، دکانوں پہ نہیں رکھ رہے، گھروں پہ رکھ رہے۔ کوئی آ کے پوچھنے کے بعد اس کو پہلے پیسے یہ کر لے رہے، اس کے بعد جا کے گھروں پہ لے کے دے رہے۔ تو وہی کیا بولتے ہیں اس کو، افینس، کیا ریپیٹڈ افینس کیا بولتے ہیں اس کو، بار بار وہی افینس کرنے کا، ایک بار وہ کیا بولتے ہیں پیسے کمانے کا مزہ لگ گیا، اور لوگ یہ زیادہ میں بیچتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ پیسے کمانے کی نیت سے زیادہ پیسے کمانے کی عمر کے وہ عادی ہو گئے۔
عادل آباد کانگریس پارٹی اسمبلی انچارج کندی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ ہم 22 مہار فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو بھیما کورے گاؤں جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قوم کو ان کی بہادری پر فخر ہے۔ کندی سنواس ریڈی نے ضلع مستقل کے بھکتا پور اشوک بدھ وہار میں منعقدہ بھیما کورے گاؤں کے 206ویں شوریہ دیوس من وندنا پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور روایتی انداز میں ان کا استقبال کیا گیا۔ انہوں نے شہداء کے یادگاری منیار کے قریب امبیڈکر اور بدھ کی تصاویر پر پھول چڑھائے اور موم بتیوں کو روشن کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور جے بھیم کا پرچم لہرایا۔ اس موقع پر کندی سنواس ریڈی نے نریندر مودی کی حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ بھارت کے آئین کے بانی ڈاکٹر امبیڈکر کا نام لینے سے گریز کر رہے ہیں جس سے امبیڈکر کی توہین ہوتی ہے۔ کندی سنواس ریڈی نے الزام عائد کیا کہ نریندر مودی کی حکومت آئین میں تبدیلی کی سازش کر رہی اور ریزرویشن کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی۔ జై అంబేద్కర్ జై అంబేద్కర్ మిల్లా మీరందరూ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని संविधान को बदल के हमारा एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी समाज के आरक्षण रिजर्वेशन को निकालने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार दिन रात काम कर रही है। रात्रि पगलू మన ఎస్సీ సోదరుల ఎస్టీ సోదరుల బీసీల మైనారిటీల యొక్క రిజర్వేషన్లు తీసేయడానికి ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అనేక కుట్రలు చేస్తున్నది। ఆ కుట్రల్ని ఫలించనిద్దామా? మనం ఆపాలనా వద్దా? ఆపాలనా వద్దా? రిజర్వేషన్లు తీసేస్తాం। काजल IPS का बतौर एडिशनल SP उटनूर सब डिवीजन तकर्रुर अमल में लाया गया है। काजल IPS ने बतौर एडिशनल SP उटनूर सब डिवीजन की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद SP कैंप ऑफिस में जिले SP आदिलाबाद गौस आलम IPS से सरसब्ज व शादाब पौधा पेश करते हुए खैर सुगाली मुलाकात की। 2021 में IPS की हैसियत से मुंतखब होने वाले काजल IPS ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ग्रे हाउंड्स में खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब उन्हें एडिशनल SP उटनूर सब डिवीजन की हैसियत से मुकर्रर किया गया। इस मौके पर जिले SP ने बताया कि उटनूर सब डिवीजन में कबायलियों की अक्सरियत है। कबायली लोगों के साथ हम आहंगी के साथ रिवायती जिंदगी बसर करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिले पुलिस को कबायलियों की तरक्की में भरपूर ताउन करना चाहिए। दोनों ओहदेदारों ने अमन व अमान के मसाइल, माजी के मसाइल और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस ने मुटिया महल असेंबली हलके से आम आदमी पार्टी की पहली हुकूमत में वजीर रहे आसिम अहमद खान को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले इकबाल से है जो आम आदमी पार्टी के मौजूदा रुकन असेंबली शोएब इकबाल के साहिबजादे हैं। कुल मिलाकर यूं कहे तो आसिम अहमद खान का मुकाबला अपनी साबिका पार्टी और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से ही है। आसिम अहमद खान अपने दौर में किए गए कामों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि साबिका और मौजूदा रुकन असेंबली शोएब इकबाल ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया और इलाके के अवाम चाहते हैं कि वो यानी आसिम अहमद खान ने जो काम अपने दौर में किए हैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने इलाके का पानी का मसला हल किया था और अवाम को किस तरह से उनके मसाइल से राहत दिलाई थी। उन्होंने बताया कि शोएब इकबाल की खामी यही है कि जीतने के बाद उन्होंने कभी इलाके पर तवज्जो नहीं दी जिसको लेकर उनके और उनके अहले खाना के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और यही उनके यानी कि आसिम खान की जीत की जमानत है। उन्होंने दो टुक अल्फाज में कहा कि अभी तक के इंतखाबी दौरों की बुनियाद पर यह वाज़ेह नजर आ रहा कि दिल्ली में पिछड़े और खास तौर पर अक़लियती तबके में कांग्रेस का रुझान है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के लिए अवाम के दिल में एक खास मुकाम है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल और मरकज में बीजेपी की हुकूमतों के कामों को अवाम ने देख लिया है और दोनों ही सिर्फ ड्रामा करती हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत के पास इन बहरानों का कोई हल नहीं है जो इसने आवाम की जिंदगियों में पैदा किए हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी एक पोस्ट में 7 अहम नुकात का जिक्र किया जो आवाम की जिंदगियों के लिए इंतहाई मुश्किल बना चुके हैं। इन नुकात को देखकर ये वाज़ेह होता है कि मोदी हुकूमत ने आवाम को मुआशी तौर पर तबाही की तरफ ढकेल दिया है। पहला, गोल्ड लोन में 50% का इजाफा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि गोल्ड लोन, सोने के और कर्ज में तेज तरीन इजाफा हो रहा और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जिससे आवाम को मजीद माली मुश्किलात का सामना है। दूसरा, खरीदारी की क़ुव्वत में कमी। खड़गे ने कहा कि घरेलू खरीदारी की सतह गुज़िश्ता 8 तिमाहियों से सुस्त हो गई है और ये अभी तक कोविड से पहले की सतह तक वापस नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि लोग क़ुव्वत खरीदारी में कमी का सामना कर रहे हैं। तीसरा, गाड़ियों की फरोख्त में कमी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गाड़ियों की फरोख्त में गुज़िश्ता 4 सालों में सबसे बड़ी कमी आई है, जिससे मईशत की कमजोरी का पता चलता है। चौथा, मजदूरों की तनख्वाह में इंतहाई कमी। उन्होंने ये भी बताया कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में गुज़िश्ता 5 सालों में 2019 ta 2023 के दौरान मजदूरों की तनख्वाह में सिर्फ 0.8% की सालाना शरह से इजाफा हुआ है। और फिर खाने पीने की अशिया की महंगाई। खड़गे ने कहा है कि खाने पीने की अशिया की महंगाई औसतन 7.1% रही और GST जैसे बिलावास्ता टैक्सों ने जरूरी अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा किया। इसके नतीजे में घरेलू बजटें 50 साल की कम तरीन सतह तक पहुंच गई। घरेलू मालियाती जिम्मेदारियां। खड़गे ने कहा है कि घरेलू मालियाती जिम्मेदारियां अब GDP का 6.4% बन चुकी है, जो दहाइयों में सबसे ज्यादा है। 7वां, रुपए की कदर में कमी। उन्होंने मजीद कहा है कि रुपए की कदर निचली सतह तक पहुंच चुकी है, जिसके नतीजे में गैर मुल्की फंड्स की खरोज और छोटे सरमायाकारों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। खड़गे ने इस पोस्ट में ये वाज़ेह किया कि मोदी हुकूमत के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नए साल के अज़ाइम सिर्फ झूठे वादे थे जो अवाम की जिंदगियों में मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे। उनके मुताबिक हुकूमत के झूठे वादों से अवाम की हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। मुल्क के दारुल हुकूमत में सख्त सर्दी का सिलसिला जारी है। सर्दी की लहर ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया। दिल्ली वाले सर्दियों से बचने के लिए तरह तरह के इक़दाम कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में यहाँ पारा मजीद गिर सकता है। साल के पहले रोज ठंडी हवाओं ने दिल में सर्दी मजीद बढ़ा दी और अगरचे सूरज भी निकल आया, लेकिन सर्दी की लहर की वजह से इसका असर नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी सूरज निकला जरूर, लेकिन इसमें कोई शिद्दत नजर नहीं आई थी। कल नए साल के पहले दिन दिल्ली में कम से कम दर्ज हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि साफ आसमान के नीचे ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज दिल्ली में कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री है और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी मामूली इजाफा हो सकता है। दिल्ली के लोग सर्दी की सख्ती से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा मजीद गिर सकता है। नए साल के पहले दिन दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी में रही थी। AQI 239 सुबह 8 बजे रिकॉर्ड किया गया था, जिसे बुरे जुमरे में शुमार किया जाता है। ये पिछले दिनों से थोड़ा बेहतर था। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान की जानिब से किसानों के मसाइल पर लिखे गए खत का जवाब दिया है। आतिशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों के मसाइल पर बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद इब्राहिम अदम तशद्दुद पर तबलीग कर रहा हो। उन्होंने बीजेपी के दौरे हुकूमत में किसानों के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों के हुकूक के लिए कभी भी संजीदा इक़दाम नहीं किए। आतिशी ने मजीद कहा है कि पंजाब में किसान इस वक्त एहतजाज पर हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनसे बात करनी चाहिए ताकि उनके मसाइल हल किए जा सके। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत के दौरान किसानों पर गोलियां चलाई गई और लाठियां बरसाई गई, जिसका कोई हिसाब नहीं लिया गया। आतिशी ने शिवराज सिंह चौहान के खत में लगाए गए इल्जामात का भी जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली हुकूमत पर किसानों के मसाइल हल न करने और मरकज की किसान दोस्ती स्कीमों को नाफिज न करने का इल्जाम आयद किया था। चौहान ने यह भी कहा था कि दिल्ली की हुकूमत ने किसानों के लिए मुनासिब फैसले नहीं किए और उनके मुफाद में कभी कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने दिल्ली हुकूमत की जानिब से मरकजी हुकूमत के स्कीमों के निफाज में रुकावट डालने का भी जिक्र किया, जैसे कि जामे बागबानी तरक्की मिशन और दीगर किसान फलाह
इफ्तिताही मंसूबे जो दिल्ली में नाफिज नहीं हो सके। इसके जवाब में आतिशी ने कहा है कि उन इल्जामात में कोई हकीकत नहीं है और दिल्ली हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। मुल्क के कई हिस्से इस वक्त कोहरे के साये में हैं। इसका असर बड़े पैमाने पर आमद व रफ्त पर देखा जा रहा। रेल खिदमात भी कोहरे के असर से मुस्तस्ना नहीं है। इसकी वजह से कई गाड़ियों की आमद व रफ्त में रुकावट पैदा हुई है। जुमेरात की सुबह 9 बजे तक दिल्ली आने वाले तकरीबन 50 ट्रेनें 1 से लेकर 5 घंटे की ताखिर से चल रही थी। कई ट्रेनों की रवानगी के वक्त में तब्दीली भी करनी पड़ी। ऑफिसरों का कहना है कि कोहरे की वजह से हदनिगाह कम होने से ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ी थी और जिससे उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचने में ताखिर हो रही। कई मुकामात पर सेफ्टी काम होने से भी मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मुसाफिरों को शदीद ठंड में प्लेटफॉर्म पर घंटों गाड़ियों का इंतजार करना पड़ रहा। ताखिर से दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ियों में फरखा एक्सप्रेस 2 घंटे, शर्म शक्ति एक्सप्रेस 2 घंटे, कालंदी एक्सप्रेस 2.5 घंटे, महाबोधि एक्सप्रेस 4 घंटे, रेवा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 2 घंटे, प्रयागराज आनंद विहार टर्मिनल हमसफर 3 घंटे, प्रयागराज एक्सप्रेस 2 घंटे, ऊंचा हार एक्सप्रेस 5.5 घंटे, पूर्वा एक्सप्रेस 3.25 घंटे, विक्रमशिला एक्सप्रेस 2.5 घंटे, गोंडवाना एक्सप्रेस 3 घंटे, जामनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 5 घंटे और साबरमती सोरन जयंती राजधानी एक्सप्रेस 2.5 घंटे वगैरह शामिल है। वहीं ताखिर से रवाना होने वाली अहम ट्रेनों में दिल्ली सराय रोहिला जोधपुर सालासर एक्सप्रेस 1.25 घंटे, नई दिल्ली सोगरिया कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट, भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस 4 घंटा 40 मिनट शामिल है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को जम्मू सूबे के राजौरी और पूंछ अजला के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकल व हमल हनूज बंद है। ताहम वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की 2 तरफा नकल व हमल हस्बे मामूल जारी है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि तारीखी मुगल रोड, SSG रोड, सनथन रोड और भद्रावा जम्बार रोड पर ट्रैफिक की नकल व हमल हनूज बंद है। बता दें कि इन सड़कों पर भारी बर्फबारी होने के बाद ट्रैफिक की नकल व हमल बंद कर दी गई थी। उधर महकमे तामीरात आमा पूंछ ने सड़क के राब्ते को बढ़ाने की तरफ एक अहम कदम के तौर पर मुगल रोड को बफलियाज से पीर की गली तक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की 2 तरफा नकल व हमल हस्बे मामूल जारी है। मुसाफिरों से लेन डिसिप्लिन पर अमल करने की ताकीद करते हुए कहा गया कि वो मिट्टी के तोदे या चट्टाने खिसक आने के खदशात के पेश नजर बानिहाल और रामबन के दरमियान गैर जरूरी तौर पर ठहरने से इज्तनाब करें और शाहरा पर दिन के दौरान ही सफर इख्तियार करें। चीन के शुमाल मगरबी शहर नंगजिया में जलजले के झटके महसूस किए गए। चीन के जलजला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन के शुमाल मगरबी चीन के नंगजिया हुई खुद मुख्तार इलाके के दारुल हुकूमत यंचुआन की यूनिंग काउंटी में सुबह 10 बजे बेजंग के वक्त पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.8 थी। जलजले का मरकज 38.4 डिग्री शुमाली अर्ज बलद और 106.22 डिग्री मशरकी तुले बलद में 10 किलोमीटर की गहराई में था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.